Assalamualaikum and welcome to Let's Learn English Online. Today we are going to discuss present perfect tense. आज के इस वीडियो में हम फेल हाल मुकम्मल को डिस्कस करेंगे और इसके मुतालिक असूलों को समझेंगे. Before moving on, don't forget to hit the subscribe button below. Question comes in our mind that what is present perfect tense? So present perfect tense is a tense which links the past to the present in some way, including discussions about life experience until now. It describes an action that started in the past and continues to happen in the present. It also tells about a recent event that is relevant to present time. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को उर्दू में फ़ेल हाल मुकम्मल भी कहते हैं. इस टेंस के जुमलों के आखिर में चुका है, चुकी है, दिया है, लिया है, किया है वगैरह जैसे अल्फाज आते हैं. इस टेंस में ये ऐसा लगता है कि काम अभी अभी ख़त्म हुआ है. ये टेंस ऐसे कामों का जिक्र करता है जो माजी में शुरू होते हैं और माजी करीब में हो चुके होते हैं या मौजूदा ज़माने में हो रहे होते हैं. ऑब्जर्व द फॉलोइंग एग्जाम्पल हियर. यू हैव बीन टू लंदन, यानी तुम लंदन जा चुके हो. इस एग्जाम्पल से ये पता चलता है कि दूसरा बंदा हाल ही में लंदन से होकर आया है क्योंकि वो लंदन गया हुआ था. We'll now discuss the structure of the present perfect tense. Let's discuss the construction of simple sentences. Start simple sentences with subjects like I, we, you, he, she, it and they. After that apply auxiliary verbs like has and have. After that main verb is applied. Always use third form of the verb such as played, and then apply objects such as football. फेल हाल मुकम्मल के सारे जुमले बनाते वक्त ये तरीक़ेकार मद्देनज़र रखें कि सबसे पहले सब्जेक्ट्स लिखते हैं जैसे आई, यू, ही, शी, इट, दे, वी एंड यू. ये बात मद्देनज़र रखें कि वाहिद फाइलों के साथ हैज़ यूज़ होता है जबकि जमा फाइलों के साथ हैव का इस्तेमाल किया जाता है. ऑक्सिलरी वर्ब्स अप्लाई करने के बाद मेन वर्ब लगाते हैं जैसे प्लेड. हमेशा थर्ड फॉर्म यूज़ होती है वर्ब की. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमेशा मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट लगाते हैं जैसे फुटबॉल. Now we will discuss the negative construction of present perfect tense. First apply subject like I, you, he, she, it, they, we and you. Then apply auxiliary verb has and have. Apply has with singular subjects like I, you, he, she and it. And apply have with plural subjects like they, we and you. After auxiliary verbs apply not and then apply main verb which is usually third form of the verb such as played. After main verb apply objects such as football. फेल हाल मुकम्मल के मनफी जुमले बनाते वक्त ये तरीक़ेकार मद्देनज़र रखें कि सबसे पहले सब्जेक्ट लगाते हैं जैसे आई, यू, ही, शी, इट, दे, वी एंड यू. इसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब्स लगाते हैं जैसे हैज़ एंड हैव. हैज़ हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ लगाते हैं और हैव हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ लगाते हैं. इसके बाद नॉट लगाते हैं और फिर मेन वर्ब में वर्ब की तीसरी फॉर्म इस्तेमाल करते हैं जैसे प्लेड और इसके बाद सबसे आखिर में ऑब्जेक्ट लगाते हैं जैसे फुटबॉल. Now we will discuss the interrogative construction of present perfect tense. Bring auxiliary verbs like has and have in the beginning. Then apply subjects. After that apply third form of the verb as main verb. Then apply objects such as football. फेल हाल मुकम्मल के सवालिया जुमले बनाते वक्त ये तरीक़ेकार मद्देनज़र रखें कि ऑक्सिलरी वर्ब्स जैसे हैज़ और हैव पहले आ जाते हैं और हैज़ वाहिद फाइल के साथ यूज़ होता है और हैव जो है वो जमा फाइलों के साथ इस्तेमाल होता है. इसके बाद मेन वर्ब लगाते हैं जैसे प्लेड और आखिर में ऑब्जेक्ट आ जाता है जैसे फुटबॉल और फिर क्वेश्चन मार्क अप्लाई किया जाता है. Now we will discuss the rules regarding present perfect tense. First rule is about use of third form of the verb. इस tense में verb की तीसरी form इस्तेमाल की जाती है. Second rule says that use has with singular subjects like I, he, she and it. इस tense में he, she, it और दीगर वाहिद फ़ेलों के साथ has का इस्तेमाल किया जाता है. Third rule says that use have with plural subjects like they, we and you.
दे, यू, वी और दीगर जमा फाइलों के साथ हैव का इस्तेमाल किया जाता है। Fourth rule is regarding negative sentences that say apply not after has and have. मनफी जुमलों यानी नेगेटिव सेंटेंसेस में has या have के बाद not लगाते हैं। Fifth rule is regarding interrogative sentences. Apply has and have before subject, then question mark is placed in the end. सवाली जुमले यानी इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में हैज़ या हैव जुमले के शुरू में आता है और आखिर में सवालिया निशान लगाया जाता है। इस टेंस को हमेशा याद रखने के लिए इन असूलों को ज़बानी याद कर लें। इससे इंग्लिश की टेंसेस की मिस्टेक्स नहीं होंगी और स्टूडेंट्स आसानी से अपने ग्रेड्स इम्प्रूव कर सकते हैं। So this is it for today. See you in the next video. Just stay tuned with Let's Learn English Online for more informative videos.